ਸਾਡੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ। ਮੰਗਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਚ ਆਮੀਨ। आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ। आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ। डोले मेरी किश्ती, डोले मेरी किश्ती किनारा बन जाओ। आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ। तेरे कर वसा मैं दुआए हो मंगिए। तेरे कर वसा मैं दुआए हो मंगिए। जिंदगी तो वध के दुआ तेरी चंगी है। जिंदगी तो वध के दुआ तेरी चंगी है। जान तो भी वध के, जान तो भी वध के प्यारा बन जाओ। आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ। आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ। वचना दी महक नाल मैनू महका दिओ। वचना दी महक नाल मैनू महका दिओ। दिल दी खेती च चंगे फलां नू उगा दिओ। दिल दी खेती च चंगे फलां नू उगा दिओ। मिठी खुशबूदा, मिठी खुशबूदा नजारा बन जाओ। आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ। आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ। केरिया मुसीबतां ने दिल ढावा डोलिया। केरिया मुसीबतां ने दिल ढावा डोलिया। जिंदगी दा सच्चा छुटकारा तेरे कोल है। जिंदगी दा सच्चा छुटकारा तेरे कोल है। मेरी मुक्ति दा, मेरी मुक्ति दा दुआरा बन जाओ। आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ। आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ। डोले मेरी किश्ती, डोले मेरी किश्ती किनारा बन जाओ। आओ यीशु मेरा सहारा बन जाओ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया प्रभु आमीन। आशीष दे, बरकत दे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ आमीन ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਮ ਸੀ ਕੀ, ਸਿਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਮ ਸੀ ਕੀ। आमीन। ਸੁਰਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸਿਸਟਰ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜੈਮ ਸੀ आ रही आवाज भाई जी? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ जय मसीह। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया मेरे प्यारे यीशु। शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया मेरे प्यारे यीशु। कम चल देवी ने, कम रुक देवी ने, दुख आउंदे भी ने, दुख मुकदे भी ने, कम चलदे भी ने, कम रुकदे भी ने, दुख आउंदे भी ने, दुख मुकदे भी ने।
पर असली ने चाहते ना घबरावेगा, पर असली ने चाह मांगते ना घबरावेगा। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। आमीन ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। शुक्रिया तेरा शुक्रिया मेरे प्यारे यीशु, शुक्रिया मेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया मेरे प्यारे यीशु। आपे लामे सट्टा आपे बन्ने पट्टियां, आपे पामे बादे आपे पामे चट्टियां। आपे लामे सट्टा आपे बन्ने पट्टियां, आपे पामे बादे आपे पामे चट्टियां। जेड़ा जेड़ा इस नबज नू समझे ना मुरझावेगा, जेड़ा इस नबज नू समझे ना मुरझावेगा। जेड़ा इत्थों तक लेके आया ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਧਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਨਾ, ਗਲ ਗਲ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਨਾ। ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਨਾ, ਗਲ ਗਲ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਨਾ। ਔੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਪਰਮਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਵੇਗਾ, ਔੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪਰਮਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਏ ਨੇ ਤਜੁਰਬੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਕਮਾਲ। ਹੋਏ ਨੇ ਤਜੁਰਬੇ ਇਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਕਮਾਲ। ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ ਵਿਛਾਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ ਵਿਛਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। शुक्रिया तेरा शुक्रिया मेरे प्यारे यीशु, शुक्रिया
तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मेरे प्यारे यीशु। आमीन, हालेलुया। Amen. 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 God bless you. प्रभु दी महिमा होवे, स्तुति होवे। सचमुच साडा खुदा भला खुदा है, दया करने वाला परमेश्वर है। जिद्दां हिजकियल नबी दी पुस्तक 18 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭਲੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਸਭ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। God bless you, brother. Okay, God bless you. Tarif, 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 tarif. Hallelujah, 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 hallelujah. ਏ ਮਹਾਨ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਮ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦੇ ਯਹੋਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਤਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਕੰਮੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਹੋਣ ਦੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਗੜਾਈ ਬਖਸ਼ੋ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋਈਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਮਾਮ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਡਿਸਹਾਰਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਸਾਨੂੰ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋਈਏ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਓ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਿਕੰਮੇ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮੀ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਇਹ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਈਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੱਸਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਰੂਪੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਘੇਰੀ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਘਟੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਸਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੁਦਾਵੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈਏ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਬਾਈਬਲ ਬਣ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਚਰਚ ਦੇ ਐਲਡਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ,
ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਭਾਈ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਛੂਲੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕਲਾਮ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀ ਕਰੇ। ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। Amen. ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ। Amen. Amen. Thank you. God bless you, भाई ब्रदर आर.के. जसुआ। प्रभु आपको भी बहुत आशीष बरकत दे। आमीन। प्रभु आपको भी आशीष। मैं प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में आप सबको ग्रीट करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें एक सुंदर दिन हमारे जीवन में एक और दिन बढ़ाए और हमें एक दिन हमारे लिए दिए कि हम प्रभु में और बढ़े, प्रभु के वचन से भरे और प्रभु के समझ से भरे, भरीपूरी होकर के हम प्रभु के साथ में चल सके। सुंदर प्रार्थना भाई ने बहन ने की और सुंदर प्रार्थना भाई ने भी शुरू में की है और भाई आरव ने, भाई अवी ने और भाई आरव ने और सिस्टर सुरेंद्र ने बहुत सुंदर गीत गाए और भाई आरव ने बहुत सुंदर गीत गाया और प्रभु से मांगा कि आप मेरे साथ हो, लो मुझे सहारा दे दो। हो कितना सुंदर गीत गाया प्यारे भाई कि हम प्रभु को खोजते हैं कि नहीं। अगर हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु को मांगते हैं तो फिर हमें वो प्रभु मिल जाते हैं। जैसा कि अभी शुरुआत में भी भाई जोशुआ से बात हो रही थी तो भाई कह रहे थे कि जैसे बात हो रही थी कि बच्चे, आज का बच्चे प्रभु को नहीं खोजते। ये देख करके मेरा हृदय बड़ी दुखित होता है। हमारे घरों में, कई घरों में ऐसे देखते हैं कि आज का बच्चे प्रभु से दूर हो रहे हैं, प्रभु को नहीं ढूंढ रहे हैं, प्रभु को नहीं खोज रहे हैं। वो दुष्ट की युक्तियों में, चाल में फंस रहे हैं, उस दुष्ट की ट्रैप में फंस रहे हैं। क्योंकि वो कमजोर हैं, बच्चे कमजोर। दुष्ट भी क्या करता है, जहां कमजोर होता है वहीं अटैक करता है। दुष्ट कभी भी सामर्थ्य के साथ में नहीं लड़ने जाता, बलवंत के साथ सामने नहीं जाता है। दुष्ट भी जब प्रभु उपवास में थे, कुछ नहीं खाए हुए थे, कमजोर थे, तब जाकर के वो परीक्षा लेने गया था, वचन बताता है। पर जहां बलवंत होते हैं वहां नहीं जाता है। जो सामर्थ्य होता है उसके सामने दुष्ट नहीं टिक सकता है। अगर हम वचन के तलवार लेकर के, वचन से भरीपूरी होकर के हम उसके सामने खड़े होंगे तो हमारे से सामना करने नहीं आएगा। जब हम कमजोर होते हैं, जब हमारे हाथों में वचन का तलवार नहीं होता है, जब हमारे हृदय के साक्षी पार्टी में, जैसा सिस्टर शकुंतला ने, प्यारी बहन ने दुआ में भी कहा, प्रभु आपका वचन, आपकी जो महान बातें हैं वो हमारे हृदय की साक्षी पार्टी में छप जाए। हालेलुया। बिल्कुल, ये हमारी हर एक की यही दुआ होनी चाहिए कि प्रभु का वचन हमारे हृदय के साक्षी पार्टी में रह जाए। क्योंकि वचन बताता है ऐसे समय आने वाला है। अब बाइबल भी, जो अभी मिलावट तो शुरू हो चुका है, आगे बाइबल भी मिलना असंभव हो जाएगा, वचन भी नहीं मिलेगा। तो हमारे जिसके हृदय के साक्षी पार्टी में वो वचन लिखे होंगे, वो वचन लिखने हृदय में को जो लिखे होंगे वही याद रहेगा। हालेलुया। अगर हम प्रभु को खोजेंगे, प्रभु के सहारा मांगेंगे, यीशु ख्रिस्ट आप मेरी सहारा बन जाओ। जब यीशु ख्रिस्ट हमारे सहारा बन जाएंगे, जब हम प्रभु परमेश्वर को ढूंढेंगे, तब जाकर के वो मिलेगा। जब मांगेंगे ही नहीं, उसको ढूंढेंगे ही नहीं, उसको खोजेंगे ही नहीं, तो फिर हमें कहां से मिलेगा वो। हम पैसे के लिए कितना ढूंढते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना भटकते हैं, कहां से कहां दर दर ठोकरे खाते हैं, घर परिवार छोड़ करके दूर प्रदेश कहां कहां रहते हैं,
पर प्रभु के लिए हम इतना करते हैं? क्या हम प्रभु के लिए कोशिश करते हैं कि प्रभु कहाँ मिल सकता है, प्रभु का वचन कहाँ मिल सकता है? नहीं, ये हम अभी भी कमी है। हम खोजते तो हैं, उतने मन से नहीं खोजते, उतने लवलीन होकर के प्रभु को नहीं पुकारते। अगर प्रभु को हम पुकारें और वो ना सुने, ये असंभव है। या तो फिर हम मन से नहीं पुकार रहे हैं, या फिर अशुद्ध रीति से पुकार रहे हैं। हम सिर्फ अपने कुछ लालसा है, कुछ इच्छा है, तब तो बैठ गए, हाँ प्रभु मुझे ये दे देना, प्रभु मुझे ये दे देना, मुझे ये सहायता मदद कर देना। जब मुश्किल आ गया तब तो पुकारने लग गए। जैसा कि इजरायली उन उजाड़ स्थान में, उन मरुभूमि में जब भी तकलीफ आता था, प्रभु हमें बचा ले। प्रभु दयालु, हाँ भाई ले ले भाई, प्रभु हमें रोटी चाहिए, ले ले भाई, प्रभु हमें मांस चाहिए, ले भाई ले ले। पर थोड़ी देर में फिर से वही रास्ता, वही कुड़कुड़ाना और प्रभु को भूल जाना, प्रभु परमेश्वर के सामर्थ्य को भूल जाना। ये मनुष्य की फितरत है, मनुष्य के ये स्वभाव है। जब तक ये वो पुराना मनुष्यत्व रहेगा, जब तक हम शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से, संपूर्ण मन से हम प्रभु को नहीं पुकारेंगे तो वो नहीं मिलेगा। जब हम उसको ढूंढेंगे नहीं संपूर्ण हृदय से, नहीं मिलेगा। हम पैसे के लिए कितना मन लगाते हैं। अब भाई साहब चलो जल्दी चलें, 10 बजे का टाइम है तो 9:30 बजे पहुंच जाएंगे ऑफिस के लिए। पर प्रभु का वचन होगा तो कोई बात नहीं भाई, वो दुआ प्रार्थना करते रहेंगे, चल जाएंगे, कोई नहीं, लास्ट में वचन का लास्ट में आमीन करने चले जाएंगे भाई साहब, कोई नहीं। भाई को थोड़ा चेहरा दिखा आएंगे, भाई आरके जोशुआ है ही, उनको हाँ भाई जी जय मसीह की बोल के आ जाएंगे, लास्ट में थोड़ा सा पीछे से देख लेंगे, भाई जय मसीह बोल दिया भाई को। हाँ भाई आरके जोशुआ क्या करेंगे? भाई तो यही बोलेंगे, हाँ भाई जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। पर हम प्रभु के लिए जा रहे हैं कि आरके जोशुआ के लिए जा रहे हैं, ये सोचना है हमें। अगर हम प्रभु के लिए जा रहे हैं तो फिर उसी मन से, शुद्ध मन से प्रभु के लिए जाएं, न कि भाई आरके जोशुआ के लिए या फिर और किसी भाई के लिए। अगर हम किसी भाई के लिए जा रहे हैं तो फिर भाई हो सकता है 1 टाइम का रोटी खिला देंगे, 2 टाइम का रोटी खिला देंगे, भाई के घर में कुछ है पिला देंगे, ठंडा पानी या ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स कुछ है। पर आत्मिक और अनंत जीवन जो पाना है तो फिर प्रभु को ही पुकारना पड़ेगा। भाई सहारा दे सकते हैं, भाई अपना घर में स्थान दे सकते हैं, और नहीं है किसी के पास बाइबल तो बाइबल के द्वारा सहायता मदद कर सकते हैं, कुछ सहूलियत और कुछ दे सकते हैं। पर पाना और खोजना और पाना स्वयं को है। जब तक हम शुद्ध मन से, संपूर्ण मन से प्रभु को नहीं खोजेंगे तब तक प्रभु नहीं मिलेगा। हम धन के लिए, संपत्ति के लिए, या फिर नौकरी में पहुंचना है, या फिर कोई बड़े अफसर के पास मुलाकात करना है कि उनसे काम निकलवाना है, अगर वो हमें 9 बजे बुला रहे हैं तो हम 8:30 या 8:15 बजे पहुंच जाएंगे, कहीं छूट ना जाए वो उनका टाइम। हमारे जो बड़े अफसर से मुलाकात का समय है, कहीं वो आकर के निकल ना जाए, हम आधा घंटा पहले जाके बैठ जाएंगे। रेलवे स्टेशन जाना है तो हम क्या करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट पहुंचना है, हम 2 घंटा पहले पहुंच जाएंगे। क्या प्रभु के लिए भी हम पहुंचते हैं? प्रभु के लिए तो कोई बात नहीं, प्रभु मेरा इंतजार कर लेगा, कोई नहीं, चलेंगे, लास्ट में चलेंगे। वहां फिर कहां से प्रभु आशीष देंगे? फिर प्रभु का आशीष नहीं होगा वहां। हो सकता है आपको सांसारिक आशीष मिल सकता है, पर वो आत्मिक जो अनंत जीवन वाला आशीष है वो नहीं मिलेगा हमें। वो प्रभु हमारे हृदय को जांचता है, हमारे मनों को जांचता है। तो हमें शुद्ध मन से, संपूर्ण हृदय से, सारे मन से, सारे प्राण से, सारे समझ से। आइए हम वचन में जाते हैं, जैसा कि मत्ती की पुस्तक 22 में जाते हैं हम।
22 का 36 से। मत्ती की पुस्तक 22 अध्याय उसका 36, 37, 38, 39, 40 तक मैं पढ़ने जा रहा हूं। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 36 अप टू वर्स 40। यस, वचन में यूं लिखा है हिंदी में, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? वर्ष 37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। 38 वर्ष 38। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। आमीन, आमीन। सारी व्यवस्थाओं का आधार है, सारे भविष्यवक्ताओं का आधार है ये दो आज्ञाएं। अगर हम ये दो आज्ञाएं मान लेते हैं तो सारी व्यवस्था इसी में आ जाता है। सारी भविष्यवक्ताओं का आधार जो है वो इसी में समा जाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु कितना महान है। प्रभु और कुछ नहीं चाह रहे हैं हमसे, न तो भेंट चाह रहे हैं, न और कोई बलिदान चाह रहे हैं। प्रभु क्या चाह रहे हैं? प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रभु से सिर्फ प्रेम रखो और कुछ नहीं चाहिए प्रभु को। प्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि तू पहाड़ की चोटी में जाकर के मुझे पुकार, या फिर गुफा में जाके मुझे पुकार, या समुद्र के तलहटी में जाकर के मुझे पुकार, या मुझे ये भेंटी दे दे, मुझे ये अर्पण दे दे। प्रभु नहीं कह रहे हैं। प्रभु सिर्फ कह रहे हैं कि मुझसे प्रेम कर। हम धन संपत्ति से तो बहुत प्रेम करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, पर प्रभु से प्रेम करने वाले संपूर्ण मन से जब प्रेम करेंगे तो फिर प्रभु सारी आज्ञा, सारी व्यवस्था और सारी भविष्यवक्ता का निचोड़ उसी में आ जाएगा। सिर्फ हम प्रभु से प्रेम करें। प्रभु और कुछ नहीं चाहते हमसे। हम शुद्ध हृदय से, सारे मन से प्रभु से प्रेम करें तो प्रभु इसी में प्रसन्न है। उसको खोजे, उसको ढूंढे तो फिर वो क्या होता है? मिल जाता है। अगर हम उसको ढूंढेंगे तो वो मिल जाएगा। भाई ने बहुत सुंदर गीत गाया, मेरे सहारा बन, यीशु आज मेरे सहारा बन गया। तो ये प्रभु को खोजने की मनसा है। प्रभु को पुकार रहा है बच्चा, प्रभु से सहायता मदद मांग रहा है कि वो आप मेरे सहारा बन जाओ। तो क्यों नहीं बनेगा प्रभु? वो मन से खोजेगा तो प्रभु उसको सहारा बनेगा। चाहे कोई भी भाई बहन अगर प्रभु को पुकारेगा शुद्ध मन से तो फिर प्रभु, हमारा प्रभु वचन बताता है, न तो सोता है, न ऊँगता है, न सोता है, बल्कि वो धर्मियों के प्रार्थनाओं के ओर कान लगाए रहता है। आमीन। ओ हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। हम शुद्ध मन से प्रभु को खोजें। तो फिर प्रभु हमें मिल जाया करेगा। व्यवस्था 4 का 29। व्यवस्था विवरण। चार का 29। यस,
बुक ऑफ डेट्रोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 29। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा। शर्त ये है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। शर्त एक ही है, आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, आप मिलावट में हो, आप दुनिया में हो, इस दुष्ट की चाल युक्ति से भरी हुई इस दुनिया में हो, तो भी आप अगर प्रभु को ढूंढोगे तो वो तुमको क्या है, मिल जाएगा। शर्त है सिर्फ ये कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। हालेलुया, प्रभु की महिमा। प्रभु को ढूंढने का एक ही शर्त है, प्रभु उन्हीं को मिल सकता है जो पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढेंगे। ये नहीं कि हम और दूसरे चीजों के लिए तो सारे मन लगा देंगे, दूसरी कोई भी जरूरत है उसके लिए तो हम एक टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, 3 टाइम भी प्रयास कर लेंगे, 4 टाइम प्रयास कर लेंगे। प्रभु के लिए तो अरे मैंने तो दुआ करी थी, पता नहीं प्रभु सुनता ही नहीं। प्रभु सुनते एक ही बार में है, पर उसका भी समय होता है। और प्रभु ये भी जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। ये नहीं हम चाहे जो मांगे और वो प्रभु ले भाई डंडा घुमा दिए और हो गया, नहीं। प्रभु हमारी भलाई के लिए, जैसा कि अभी भाई ने भी पढ़ा, वो हमारी भलाई के लिए करता है। हमारी कोई भी हमारी समझ हो सकता है कि हम सांसारिक हिसाब से सोचते हैं अरे ये नहीं हुआ, ये हुआ, पर हम हर एक परिस्थिति में जब प्रभु को धन्यवाद करते हुए और प्रभु को पुकारते हुए और उसी में बने रहने की प्रार्थना करते हैं, प्रभु की समझ मांगते हैं, तो फिर प्रभु हमें सहायता मदद करता है। जैसा कि हनोक ने मांगा, हनोक प्रभु का साथ मांगा, जैसा भाई आरब ने भी मांगा, प्रभु आप आ जाओ, मेरे सहारा बन जाओ। हनोक ने भी यही प्रार्थना करी। हनोक ने जब प्रभु का साथ मांगा, वो साथ साथ में चला। जब साथ मांगा तो साथ साथ चला भी प्रभु परमेश्वर से। हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, यस, उत्पत्ति 5:22। अभी मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। 24 कहता है, लिखा है 24 में, 5:24 में, उत्पत्ति 5:24 में, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। प्रभु का जन प्रभु के साथ साथ चल करके ही सिद्ध होता है और वो प्रभु परमेश्वर के साथ में उठा लिया जाता है। तो प्रभु का आगमन, जो दूसरा आगमन है, उनके लिए है प्रभु लेने आ रहा है, जो सिद्ध हुए हैं, जो प्रभु जो वचन से भरी पूरी होकर के जो सिद्ध हुए हैं, उनको लेने आ रहे हैं, ना कि हर किसी को उठाने। हर किसी को नहीं है। अब जो बादल में जो उठाए जाएंगे, जो रैप्चर होने वाला है, वो सिद्ध हुए, जो वचन से भरी पूरी है, वचन जिनके हृदय में संपूर्ण वचन जो हृदय की साक्षी पार्टी में है, भरी हुई है, उनको लेने आ रहा है प्रभु। जो कोई तैयार है उनको लेने आ रहा है प्रभु। जैसा कि हनोक तैयार था, वो प्रभु के साथ में, प्रभु परमेश्वर के साथ साथ चलता था, सिद्ध होकर के, पवित्र होकर के,
और प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की समझ के अनुसार वो चलता था प्रभु परमेश्वर के साथ। इसीलिए परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उत्पत्ति 17 का 1 में हम पढ़ते हैं, एक का बी पार्ट में पूरे पढ़ते हैं, कोई नहीं। 17 का 1, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तो यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। हालेलुया, आमीन। प्रभु कह रहे हैं मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। जब हम प्रभु की उपस्थिति में होते हैं, जब हम ज्योति में होते हैं, तो हम फिर हमारे में अंधेरा नहीं रह सकता। भाई मेरे प्यारे भाई बहन, जब हम ज्योति के प्रकाश में होते हैं, जब प्रभु परमेश्वर की ज्योति में होते हैं, जब पवित्र आत्मा के प्रकाशन में होते हैं, तो फिर हमारे आसपास कोई अंधेरा नहीं रह सकता है, कोई अंधकार की वस्तु नहीं रह सकता है। तब जाकर के हम सिद्ध होते हैं। जैसा कि अब्राहम को प्रभु ने जब बुलाया तो कहा, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। अगर हम प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे, प्रभु का सहारा मांग करके, प्रभु के सहायता और मदद मांग करके हम उसकी उपस्थिति में जब चलने लगते हैं, तो हम सिद्ध हो जाते हैं। जब सिद्ध होंगे, वचन से भरी पूरी होकर के तैयार पाए जाएंगे, तो फिर आमद प्रभु का भले आमद किसी भी क्षण हो जाए, तो फिर हम उसके साथ में, जो कि बहुत जल्द होने वाला है, तो फिर हम उसके साथ में बादल में उठाए ले जाने योग्य होंगे। नहीं तो फिर हम इस संसार के चौकाचौंध में, इस दुनिया की जो अट्रैक्शन है नाना प्रकार की, उसमें उलझे रहेंगे, तो फिर यहीं रहेंगे। और जैसा अभी प्यारे भाई से बात हो रहा था, भाई जोशुआ से, वो सदोम और अमोरा का नाश के समय भी दुनिया ऐसी ही चल रही, नूह के समय में भी ऐसे ही चल रहा था, सब खाना पीना सब हो रहा था, ये शादी भी ऐसे हो रहा था, पर वो सब के सब नाश हो गए। वो नाश हो गए जिसने प्रभु का आज्ञा और प्रभु के डर भय में जो चला, सिर्फ वही सिद्ध हुए और वही प्रभु के साथ में उठाए ले जाने योग्य हुए होंगे। प्रभु आशीष दे और प्रभु हमें समझ दे कि हम भी उसकी उपस्थिति को मांग करके और उसकी उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में चलने योग्य हो सके। प्रभु हमें सहायता मदद करे और वो अनुग्रह करे। प्रभु से मांगे, प्रभु जरूर आशीष देगा। ऐसी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है जल्दी से। हम दूसरी चीज, सांसारिक चीजें मांगेंगे तो वो उसको पूरा होने में काफी समय लग सकता है। मेरे प्यारे भाई, अगर हम संपूर्ण मन से और संपूर्ण प्राण से और संपूर्ण समझ से प्रभु की सहारा मांगेंगे, प्रभु की उपस्थिति में चलने के सामर्थ्य मांगेंगे, तो वो जरूर देगा। अगर हम संपूर्ण मन से मांग रहे हैं, संपूर्ण मन से उसको खोज रहे हैं, तो वो जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो सहायता मदद करने के लिए तैयार है। उसका हाथ छोटे नहीं है, वो पसरे हुए हाथ बहुत मजबूत हाथ है। और वो मजबूत हाथ हमें कहीं से भी वो निकालने के लिए सामर्थ्य है। अगर हम कुड़कुड़ाते हैं या फिर संसार की चीजों में अपने लालच में फंसे रहते हैं, तो फिर हम कई बार पढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसा कि पुराने नियम में हम कई जगह पढ़ते हैं, वो इजरायली जहां भी प्रभु से कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, तो वहां उनके लिए वो नाश का क्षण बना। वो संसार की चीजों में जहां भी
संसारिक चीजों में उलझने लगे तो वहां उनके लिए एक ठोकर का कारण बना। आइए हम पढ़ते हैं बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की पुस्तक 16, गिनती की पुस्तक 16 में हम जाते हैं। जैसा कि प्रभु के याजक जनों में भी जो कई ऐसे थे जो प्रभु के जनों से भी कुछ झगड़ा करते थे, बुड़बुड़ाते थे। जैसा कि कोरह के विषय में भी ऐसे लिखा है। वो क्या करते थे, वो जो मूसा और हारून से वो क्या करते थे, ईर्ष्या रखते थे, जलन रखते थे, और वो कहते थे कि हमें भी बड़ा अधिकार मिले। वो प्रभु का साथ नहीं मांग रहे थे, वो अपना अधिकार मांग रहे थे। हमें ऊंचा स्थान चाहिए, ऊंचा पद चाहिए, संसार की ऐसो आराम चाहिए। वो ये नहीं चाहते थे कि प्रभु मैं नम्र होकर के, विनम्र होकर के आपके साथ चलूं। वो प्रभु आप हमारे सहारा बन जाओ, ये नहीं पूछ रहे थे, ये नहीं मांग रहे थे। प्रभु को नहीं ढूंढ रहे थे, प्रभु परमेश्वर को नहीं, वो ढूंढ रहे थे क्या, अपने स्थान, अपना रुतबा, ऊंचा पद, ये चाहते थे। मूसा और हारून से बोलते थे क्या तुम ही दो शुद्ध पवित्र हो, हम भी याजक हैं, हम भी लेवी हैं, हमें भी ऊंचा पद चाहिए, हमें भी वैसे ऊंचा नाव चाहिए। पर प्रभु इनसे प्रसन्न नहीं होता है। जहां भी अहंकार होता है, जहां सांसारिक लालसा होता है, तो फिर वहां प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होते। प्रभु तो नम्रों को चाहते हैं, जो नम्र बनते हैं, विनम्र होते हैं, हलीम होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, जो प्रभु के वचन और व्यवस्था में बना रहता है, उनसे प्रसन्न होता है। जहां प्रभु को कोई ढूंढता है, प्रभु को खोजता है, वहां प्रसन्न होते हैं। ना कि अपना पद खोजे, कोई लालसा रखे, कोई ऊंचा स्थान खोजे, वहां प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। जैसा कि इन कोरहवंशी, इनके लेवियों के साथ में हुआ। वो अपने रुतबे के लिए बुड़बुड़ाते रहे, ईर्ष्या रखते रहे। पर जब वो बुड़बुड़ाने लगे, और वचन बताता है कि जिससे प्रभु परमेश्वर इतना खफा हुए, इतना खफा हुए कि धरती उनको जिंदा निगल गया। हालेलुया, जिंदा निगल गया। एक तो हनोक का हमने अभी उदाहरण पढ़ा, जो कि परमेश्वर के साथ मांगा और परमेश्वर के साथ साथ चला और सिद्ध हुआ और अलोप हो गया, उसको कहीं नहीं पाया गया। और एक दूसरा उदाहरण ये है, जिनको हम गिनती की पुस्तक 16 के, भले हम 30 से पढ़े, 31 से पढ़े, तो यहां बताता है वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे से फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया, और उनका और उनके घर द्वार के सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी, हालेलुया, निकल लिया। और वे और उनका सारा घरबार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया, और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। वो जीवित ही अधोलोक में चले गए मेरे प्यारे भाई बहन।
कितना कष्टकर, कितना भयंकर स्थिति होगा जीवित अधोलोक में जाना। हो प्रभु अनुग्रह करे हमें, प्रभु हमें समझ दे कि हम प्रभु की सहारा मांगे, जो कि हम प्रभु की वचन में है, प्रभु की इच्छा और प्रभु के सहारा किस में है, वचन में है। और वो वचन को हम पूरी समझ से, पूरी प्राण से और पूरे सारे मन से मांग करके हम उसके साथ में चलने वाले हो सके, न कि हम अपनी पद के लिए, रुतबा के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए और ऊंचा नाव के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ऊंचा स्थान दे। नहीं, प्रभु जानता है अगर मुझे ऊंचा स्थान देना है और जरूरत है तो प्रभु देगा। अगर मुझसे महिमा कुछ काम करवाना है तो वो देगा। हालेलुया। अभी भाई से बात हो रहा था कि मुझ निकम्मों को प्रभु ने चुना, मुझसे भी, और जैसा कि अभी भाई से बोल रहा था मैं, वो गधी से भी बात करवा सकता है तो मुझसे क्यों नहीं। जब प्रभु को काम लेना होता है किसी से भी काम ले सकता है। अगर आवश्यकता होता है जहां पर, तो प्रभु किसको ऊंचा रखना है, किसको पद देना है, वो प्रभु जानता है। किसके द्वारा महिमा लेना है प्रभु जानता है। हम नम्र बने, हलीम बने और प्रभु के आज्ञाकारी बने, वचन के आज्ञा में रहे, तो फिर वो हमें जरूर मिलेगा, वो हमें सहायता मदद करेगा। बस एक ही शर्त है उसको पाने का, कि हम सारे मन से, सारे प्राण से और सारे समझ से उसको ढूंढे, तब वो मिला करेगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हम यिर्मयाह की पुस्तक में जाते हैं। ऐसे ही लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक में भी। यस, 29 का 13। प्रभु की महिमा हो। तब उस समय 12 से पढ़ते हैं हम यिर्मयाह पुस्तक 29 का 12 और 13। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 12 एंड 13। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम आपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हम अगर संपूर्ण मन से उसके पास जाएं और प्रार्थना करें तो वो मिल जाएगा। प्रभु जो संपूर्ण मन से पुकारता है उसको सुनता है, उसको मिल जाता है, तब वो सुनता है। हालेलुया। प्रभु की महिमा।
जब हम उसको संपूर्ण मन से पुकारेंगे तो वो फिर हमें मिल जाया करेगा। प्रभु जी ने हम उसको, प्रभु परमेश्वर को संपूर्ण मन से पुकारने वाले हो सके, संपूर्ण मन से उसको प्रसन्न करने वाले हो सके। जिससे कि वो हमारा सहारा बन करके हमें लीड करे, गाइड करे और उस सिद्धता में भरे जिससे कि हम उसके आमद में तैयार पाए जा सके। प्रभु की महिमा। और वचन बताता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यस, हम जाते हैं मत्ती की पुस्तक में। मत्ती की पुस्तक 7 और 8। 7 और 8। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मांगना क्या है? हमने अभी पढ़ा, प्रभु की इच्छा, प्रभु की मर्जी और प्रभु का साथ, उसके प्रभु का सहारा, और उसके साथ में चल करके प्रभु के वचन से भरीपूरी होकर सिद्धता। उस सिद्धता में हम जब जाएंगे तो तब ना हम उसके साथ में उठाए ले जाने योग्य होंगे। प्रभु से मांगना और ढूंढना क्या है? प्रभु को ही मांगना है। प्रभु आपका सहारा दो हमें, प्रभु आप हमारे सहारा बनो, प्रभु आप कहाँ हो, मैं आपके साथ में चलने योग्य का हो सकूं। तो फिर प्रभु हमें सहायता मदद करेंगे, तो फिर हमारे लिए वो दरवाजा खुल जाएगा। वो जो बंद दरवाजा है वो खुल जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है वो पाता है, उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हम खटखटाएं, प्रभु को पुकारें, प्रभु से मांगे और प्रभु को ढूंढे, तो फिर वो हमें सहायता मदद करेगा। बस शर्त एक ही है कि सारे मन से, सारे प्राण से और सारे बुद्धि से उससे प्रेम रखें, तब जाकर के वो हमें सहायता मदद करने। प्रभु आज भी, प्रभु का जो हम कई बार ऐसे वो एक चित्र हम देखते हैं, प्रभु का हाथ जो पसरा हुआ है क्रूस में, वो हम सबको बुला रहा है, कह रहा है कि आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हाथ फैला करके प्रभु हमसे कह रहे हैं, पुकार रहे हैं, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार मुक्ति दूं, मैं तुम्हें वो सिद्धता दूं। पर हम है कि प्रभु थोड़ी देर और थोड़ी देर, मुझे कुछ करना है, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। हम आलस करते हैं, पर प्रभु है कि हमसे विनती कर रहे हैं, हमसे पुकार रहे हैं कि आओ मेरे पास आओ, मेरे से गले लगो और मेरे प्रेम से भरीपूरी हो जाओ। प्रभु कह रहे हैं, हम उससे प्रेम नहीं रखते, हम पापी थे, जैसा कि बहन ने अभी प्रार्थना में कहा। बिल्कुल, हम पहले शुद्ध नहीं थे, हम पापी थे, पर प्रभु ने हमसे प्रेम किया। उस पापी स्थिति में
हम पाप से भरे हुए थे, गंदे थे, लथपथ थे हम। उस स्थिति में प्रभु ने हमसे प्रेम किया। हम निकम्मों को प्रभु ने प्रेम किया। कि प्रभु चाहते हैं हम जैसे पापियों का उद्धार हो। हमसे प्रेम करता है प्रभु, कितना प्रेम करता है। ऐसे प्रभु से हम क्या इतना भी नहीं कर सकते कि उसको प्रेम रखें? इतना भी नहीं कर सकते कि हम उसको खोजें? इतना भी नहीं कर सकते कि हम उसके साथ साथ में चले, उसकी उपस्थिति में, जैसा हनोक चला और सिद्ध हुआ? या फिर हम उन कोरब वंशी की तरह जो गुड़गुड़ाते रहे अपने पद के लिए, अपने लालसा के लिए, और नाश हो गए? कितना बड़ा एग्जाम्पल है, कितना बड़ा उदाहरण है। जो हनोक साथ साथ चलता था और पता ही नहीं चला, वो उठा लिया गया सिद्ध होकर के, और एक कौरववंशी जिनका जीवित अधोलोक में चले गए, उनके घराने के सब कुछ ओ हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, हमें ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण प्रभु ने किस लिए लिखवाए? इसीलिए कि हम सावधान रहें, हम इन सब गलती जो कि उन्होंने किया वो गलती ना दोहराए, बल्कि हम जो अच्छे एग्जाम्पल है उसको पकड़े रहे, ना कि हम उस सदोम के लोगों के समान हम अपवित्र होकर के, अशुद्ध होकर के नाश हो, बल्कि चुने हुए के समान शुद्ध पवित्र होकर के हम उसके आमद में सिद्ध होकर के तैयार पाए जा सकें। जैसा कि नूह धर्मी था, खरा था, शुद्ध था, और उस समय के लोगों में सबसे धर्मी था, वैसे ही हम भी सिद्ध होकर के, वचन से भरीपूरी होकर के, प्रभु की आज्ञा में चलने वाले होकर के, प्रभु के साथ में चलने वाले होकर के सिद्ध हो सके। प्रभु से यही प्रार्थना मांगे और प्रभु को यही पुकारें, मन से पुकारें, जहां कि अभी हमने यिर्मयाह की पुस्तक में भी पढ़ा। हम प्रार्थना करेंगे तो वो सुनेगा। जब हम शुद्ध मन से उसको खोजेंगे तो हमें मिल जाया करेगा। प्रभु की महिमा हो। प्रभु हम सब पर अनुग्रह करे, हमें सहायता मदद करे। हम सब निर्बल हैं, प्रभु जानता है कि हमारे सामर्थ्य को, हमारे खूबियों को प्रभु जानता है, और वो तैयार है हमें सहायता मदद करना, वो चाहता भी है। पर हम है कि हम ही संपूर्ण मन से उसको नहीं पुकारते हैं, उसको नहीं खोजते, न तो उससे प्रेम रखते हैं। हम दूसरी बातों के लिए कितना तत्पर रहते हैं। अगर वचन के अलावा और कोई चीजों का यह अगर प्रोग्राम रखा जाए तो पता नहीं कितना भीड़ लग जाए। पर वचन के लिए अरे भाई कुछ ना कुछ बहाना निकल ही जाता है। बहुत कठिन है प्यारे भाई बहन, इसीलिए तो वचन बताता है उस सकड़ी रास्ते में बहुत मुश्किल है चलना। जो चौड़ा रास्ता है उसमें तो बहुत से चलेंगे जो कि नाश की ओर जाता है। प्रभु से प्रेम रखना जो कि इस समय के, इस जो अंत के समय के लिए लोगों के लिए बहुत कठिन है। जो नाश होने वाले हैं उनके लिए बहुत कठिन है, पर जो उद्धार पाने वाले होंगे उनके लिए सबसे आनंद की चीज है, सबसे शांति की चीज है, क्योंकि वो प्रभु से प्रेम रखते हैं। जो उद्धार पाने वाले होंगे ना, वो प्रभु से प्रेम रखते हैं, वो भी सारे मन से, सारे प्राण से और सारी समझ से प्रेम रखने वाले होंगे। उनके लिए वो मार्ग बहुत आनंद का मार्ग है, बहुत शांति का मार्ग है।
ओ हालेलुया। आमीन। हम अपने योग्यता से नहीं चल सकते, वहां प्रभु का सहारा चाहिए। जैसा कि प्यारे भाई ने मांगा, प्रभु सहारा दो, आप सहारा दो, वो सहारा देगा, बशर्ते हम उसके साथ में चलने के लिए जैसा हमने मांगा है उसी अनुसार हम उसको समर्पित होकर के चले। प्रभु हम सबको आशीष दे इस छोटे से संदेश के द्वारा। प्रभु आप सबके घराने में आशीष बरकत से भरे और प्रभु का आत्मिक आशीष आप सबके घराने में हो। मैं गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स एंड सिस्टर। गॉड ब्लेस यू भाई जोशुआ। थैंक यू भाई, प्रभु आपको आशीष और बरकत दे, प्रभु आपको और भरे कलाम से। और अब हम सिस्टर रूथ के साथ आखिरी दुआ करेंगे। और सिस्टर रूथ, एक विनती है कि भाई जसविंदर को भी प्रार्थना में रखना, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। प्रभु उनको भी आशीष और बरकत दे और अपने कलाम से भरे, उनकी फैमिली को ब्लेस करे। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ तारीफ तारीफ। सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर, आज दे दिन ने मेरे प्रभु जी ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਪਨੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। मैं तेरा शुक्र करनी हाँ, धन्यवाद करती हाँ मेरे अब्बा मेरे बाप दयावान खुदा मेहरबान मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच प्रभु साडे च कोई खूबी नहीं मेरे परमेश्वर, सचमुच असी कमियां दे परे होए हाँ मेरे प्रभु, असी निकम्मे हाँ मेरे प्रभु, पापी हाँ प्रभु, बहुत वड्डे गुनाहगार हाँ प्रभु जी। तुसी सचमुच मेरे पिता परमेश्वर सानू दलदल दे चिक्कड़ चुक कट के खिंच के ले आए मेरे परमेश्वर, अपने नाल बिठाया सानू पापियां नू मेरे प्रभु जी। दया कीती, मेहर कीती, रहमत कीती, कृपा कीती मेरे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर जिन्ने भी भाई भैन प्रभु सारे इस मीटिंग ते ज्वाइन हैं, मैं प्रभु जी उन्हां लई दुआ प्रार्थना करनी हाँ, आशीषां बरकतां मंगनी हाँ प्रभु। उस भाई भैन 10 20 30 40 गुना नहीं 100 गुना प्रभु आशीषां बरकतां नाल भरी मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावन खुदा हर एक दे घराने लई करनी हाँ मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर। जो भाई भैन विच नहीं मौजूद मेरे खुदा, मैं उन्हां लई भी दुआ प्रार्थना करदी हाँ मेरे पिता परमेश्वर। जो भाई भैन साडे तो दूर है मेरे प्रभु जी, मैं उन्हां लई भी दुआ करदी हाँ खुदा। मेरे पिता परमेश्वर सचमुच प्रभु तू दुआवां नू सुनन वाला खुदा है प्रभु। मैं छोटे बच्चों लई प्रभु सारियां लई दुआ करदी हाँ प्रभु जी। जो समा चल रहा है मेरे प्रभु, शैतान दी कोई भी प्रभु युक्ति पास ना हो सके प्रभु। तू अपने बच्चों दे नाल होए मेरे खुदावन खुदा। मेरे पिता परमेश्वर दया में रहमत कृपा करी मेरे प्रभु जी। तू कृपा करने वाला खुदा है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी सचमुच तू जिंदा ते जलाली खुदा, साडी दुआ नू सुनना मेरे प्रभु जी। सचमुच तू कहना मैं टुटे हिरदियां नू देखदा वां तां सुनदा वां प्रभु। तू सब दे हिरदियां नू जानन वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु जी मेरे खुदा। इसे तरह सानू कलाम दी समझ दे प्रभु, अपने विच वधा मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावन खुदा, मैं अपने भरा जसविंदर लई प्रभु प्रार्थना करदी हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन्हां दा अज दुनियावी बर्थडे है मेरे पिता परमेश्वर। उन्होंने प्रभु जी दुनियावी तौर ते भी वधा मेरे खुदावन खुदा। हर एक काम काज वालों मेरे पिता परमेश्वर उपराते प्रभु इन्नी दया मेहर रहमत कृपा कर मेरे प्रभु। सचमुच मेरे प्रभु जी मेरे खुदा तू जाने अपने बच्चे नु प्रभु किस हालातां विच वो निकलिया मेरे प्रभु जी। उस प्राली प्रभु आशीषां बरकतां मंगदे हां प्रभु जी, दुनियावी आत्मिक प्रभु आत्मा विच होर तगड़ाई दे मेरे भरा नु मेरे प्रभु। मेरे खुदावन खुदा प्रभु जी 100 गुना मेरे प्रभु जी, 100 गुना प्रभु आशीषां दे प्रभु। ओनू भर दे प्रभु, ओदे घर नू भर दे प्रभु, उस बच्ची नू ओदी वाइफ नू मेरे पिता परमेश्वर भरा दी मेरे प्रभु जी। हर एक जरूरत तेरे जोरां वार मैं हत्थां विच दिन्नी आ प्रभु